Today I would like to talk to you about decisions, how important each decision in our life is. और आज मैं आपसे डिसीशंस यानी निर्णय के बारे में बात करना चाहता हूँ. Decisions that we make in our life make a great impact in our lives. जो निर्णय हम अपने जीवन में लेते हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ता है. Today I would not like to go through, make it so tough for you people to understand, so I'll just go through stories. तो मैं आप में ये एक बहुत कॉम्प्लिकेट या बहुत कठिन नहीं करूँगा, मैं ये सब कहानियों के द्वारा आगे जाऊँगा. So that you people can understand how it is easy, how a decision can change your life. तो इसके मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक निर्णय आपके जीवन को कैसे बदल सकता है. The first chapter we will see today is from Joshua chapter 7. पहला अध्याय जो हम देखेंगे वो है यहोशू की किताब 7वीं अध्याय. Here we can see about a war that is happening. यहाँ पर हम एक लड़ाई को देखते हैं. Israel was a mighty army during those times. इस्राएल जो है वो एक बहुत ही बड़ी सेना थी उस समय. But if you see the previous chapters, we can see how Israel won wars against Jericho, many other wars. But then when it came to Ai, it was a very tough war for them. अगर आप पिछले अध्यायों में देखोगे तो आप ये देखेंगे कि इस्राएल कैसे बहुत सारी लड़ाइयों को जीता है यरीहो के ऊपर, लेकिन जब आकान का आया तो ये बहुत ही बड़ी लड़ाई थी. In the case of Ai, we can see that Israelites went for a war against that country, which is really small. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस्राएल जो है वो जिस कंट्री या फिर जिस शहर से लड़ने के लिए गया है वो बहुत ही छोटा है. When during those times, when before going for war, people used to send spies to their different which country they were going to attack to see how big their army is, to know how great they are. अगर हम पहले की लड़ाइयों को देखें तो वो लोग जासूस को भेजते थे ये देखने के लिए कि वो शहर कैसा है, कितना बड़ा है या क्या है. In chapter 7 we can see when spies were sent to this country Ai. अगर हम ये 7वीं अध्याय में देखेंगे कि जब जासूस को वहां भेजा गया था. In the verse 3 we can see when they saw very just few people. अगर आप उसकी तीसरी आयत को पढ़ेंगे, और उन्होंने यहोशू के पास लौटाकर कहा सब लोग वहां ना जाए क्योंकि 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं. Just imagine Israel being a big country, a big army is going to a war with a small country with very few people. तो अभी हम यहाँ पर एक इमेजिन करेंगे कि इतना बड़ा जो शहर है इस्राएल वो जा रहा है एक छोटे से देश ए में जहाँ पर 2 या 3 हजार ही है लड़ाई करने के लिए. I want everyone to note these chapters which I am saying to you and go back home and read it once again. मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सब का नोट ले और घर जाकर एक बार इसमें अध्ययन करें. When we see over here, when people went for war, that war Israelites lost. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इस्राएल लोग इस लड़ाई में गए तो इस्राएल ये लड़ाई हार गई है. And Joshua was shocked. Being a small country, Israelites couldn't defeat. They defeated Jericho. They defeated such big armies, but a small country was not able to be defeated by them. और यहोशू को ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जब हमने इतनी बड़ी बड़ी देशों को हरा दिया तो इतना छोटा सा एक देश को हम लोग हरा नहीं पाए. In the verse 6 we can say Joshua tore his clothes, fell with his face down on the earth. और हम छठी आयत में ऐसा पढ़ते हैं कि यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वो जमीन में मुंह के बल लेट गया है. It was such an insult for Israelites. ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपमान था. But then Joshua, till evening he was talking to his people. He wanted to know what was the reason. Why did we lose such a simple war? शाम तक यहोशू अपने लोगों सेनापति सबसे बात कर रहा था और वो ये जानना चाहता था कि हमने ये लड़ाई क्यों हारी है. Then we can see about a person called Ahan in this chapter. और हम अब दूसरे एक व्यक्ति के बारे में देखना चाहते हैं जिसका नाम है आकान. Here Ahan when he went for the war with Jericho, he stole certain cursed things.
जब आकान इस लड़ाई में जा रहा था तब उसने कुछ जब यरीहो की लड़ाई में जा रहा था तो उसने कुछ शापित चीजों को चुरा लिया And without anyone knowing, because during this war, God had told to destroy everything in Jericho. यरीहो में जब लड़ाई हो रही थी तब प्रभु ने कहा था कि वहां पर जो कुछ भी है तुमको उसका नाश करना है. So what happened? He stole these things, he came and brought it back in his tent, and he hid it under the earth. लेकिन आकान ने क्या किया, वहां से कुछ शापित चीजों को चुराया, अपने तंबू में लेकर आके उसको जमीन में गाड़ दिया. So now when God spoke to Joshua, he told, you bring all the people from each tribe and ask who did such thing. तब यहोशू ने जब परमेश्वर ने यहोशू से बात किया तो उन्होंने बोला कि हर जाति को बुलाओ और पूछो कि ये चीज किसने की है. And when you come to from 19 to 20th verse in this chapter, you can see Ahan is brought in front of Joshua and the elders. अगर हम लोग इसकी 19 या 20 आयत को पढ़ेंगे तब हमको ये पता चलेगा कि आकान को सामने यहोशू के सामने लेकर आए हैं. And Ahan repented and said that, yes, I had done such a thing. आकान ने उस टाइम कबूल किया या पश्चाताप किया कि हाँ मैंने जो बोला था उसके विपरीत किया है. Joshua sent his soldiers to search Ahan's house. जोशुआ ने अपने सिपाहियों को आकान का घर की खोज करने के लिए भेजा. And they found out there were 200 shekels of silver, a wedge of gold weighing 50 shekels, converted and hidden on the earth. It is in verse 21. और उन्होंने वहां जाके पाया कि उसने एक सुंदर ओढ़ना, 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट वहां पर उसके लालच की वजह से थी. So I'm coming to the important part of this person. Because of his decision to go against the will of God, who suffered? Israelites suffered and fell for that war. मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस आदमी के एक निर्णय की वजह से पूरे इस्राएली लोगों को उसका सफरिंग या फिर उसका वो भार उठाना पड़ा. Forget about Israel now. Now when you come to the verse 24, you can see all his sons, his silver, his gold, his daughters, everyone were bought together. सिर्फ इस्राएली नहीं, उसका पूरा परिवार उस सबको एक साथ लेकर आए. What did the Israelites do was they stoned him. और इस्राएलियों ने क्या किया, उस पे पथराव किया. Not just stone him, they lit him in fire too. और उसको आग में जला दिया. Imagine, because of his decision, his family also suffered. और उसके एक निर्णय की वजह से उसके पूरे परिवार को भी सजा मिली. Just a small decision. He could have just, imagine, he just stole some things from Jericho, came and kept it for his own good. But then who had to suffer because of his decision? It was his family also. उसने क्या सोचा, उसके लिए एक छोटी सी चीज थी, वो सब चुरा के घर में लेकर आके उसने रख दिया, लेकिन उसकी इस निर्णय की वजह से उसके पूरे परिवार को सहना पड़ा. Still, if you see, this place where he was led is still there in this world now. और आज के दिन में भी जहाँ पर उसको जलाया गया था वो जगह अभी भी है. So imagine, that was God wanted to show the world because of one decision what he made them to suffer. परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि एक निर्णय की वजह से पूरे परिवार को भी सजा मिल सकती है. The next person we are going to see is Zacchaeus. If you go to Luke chapter 19, दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम देखेंगे वो है लूका चैप्टर 19वें अध्याय में. here we can see Zacchaeus, a tax collector. यहाँ पर एक जक्कई के बारे में हम देखेंगे, वो था चुंगी लेने वाला. Now Zacchaeus he was a big time sinner. वो एक बहुत ही पापी मनुष्य था, जक्कई. Why? Because he used to collect tax illegally from all the people over there. क्योंकि वो गलत तरीके से चुंगी लेता था. And people were very angry with him. और वहाँ के लोग सब उससे बहुत नाराज थे. No one liked him because he was the tax collector. कोई भी जक्कई को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से चुंगी लेता था. Because we can see that he was even short also. If you see in the verse 3 of chapter 19, there you can see he's a short stature. अगर हम इसकी तीसरी आयत में पढ़ेंगे तो वो बहुत ही नाटा था. So when Jesus was crossing through Jericho,
जब यीशु मसीह यरीहो में पार कर रहा था, he came to know about Jesus. जक्कई को यीशु मसीह के बारे में पता चला, He took a decision that even though I am a sinner, तो उसने एक निर्णय लिया कि मैं पापी तो हूँ, but I want to see who is Jesus. लेकिन मुझे यीशु मसीह कौन है जाके देखना है। So what he did, उसने क्या किया? when Jesus was passing through, जब यीशु मसीह गुजर रहा था, he climbed a tree to see Jesus. वो एक पेड़ में चढ़ा यीशु मसीह को देखने के लिए। So he thought Jesus is not going to see him. उसने सोचा कि हाँ, मैं पेड़ में चढ़ जाता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं दिखेगा। No one cares about me because I am the biggest sinner over here. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता है। I am taking money from different people without, which is not even legally. मैं बहुत गलत तरीके से और बहुत लोगों से पैसा लूटता हूँ। But when you come to the verse 5, लेकिन अगर आप यहाँ 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, Jesus came to the place where he was, where he climbed the tree. प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास आया जहाँ वो चढ़ा हुआ था, And he looked up और उन्होंने ऊपर देखा because he knew Zacchaeus was sitting there. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जक्कई ऊपर बैठा है। And he told Zacchaeus, come down. और उन्होंने जक्कई से बोला, नीचे उतर, Today I must stay at your house. आज मैं तेरे घर में रहूंगा। You read the verse 5. अगर आप वो 5वें अध्याय पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। Imagine, Jesus is saying to a sinner, प्रभु यीशु मसीह एक पापी से बोल रहा है, and he, after listening to this, he immediately came down with a joyful heart. He received Jesus. और ये सुनते से ही वो बहुत खुश हुआ और वो नीचे उतर के उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। When you come to the next verse, that is 7th verse, you can see that people started murmuring around him, saying that how can Jesus go to a sinner's house? अगर उसका 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पाएंगे कि लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि प्रभु इस पापी के घर में क्यों जा रहा है। Imagine Jesus when he comes to our life, और ये सोचिए कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, and if you receive him joyfully, अगर हम उसको बिल्कुल एकदम खुशी के साथ अगर उनका स्वागत करेंगे, a new chapter is going to start in your life. हमारे जीवन में एक नया अध्याय चालू होगा। Like that, in Zacchaeus' life also a new chapter was beginning. जैसा हम देखेंगे कि जक्कई के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। When you look in the verse 8, you can see Zacchaeus gave the money back fourfold, not one or twofold. Fourfold he gave it back to the people he has taken the money from. उसकी 8वीं आयत में हम देखेंगे कि जिससे जक्कई ने गलत पैसा लिया था या ज्यादा पैसा लिया था, उसको वही वापस नहीं किया बल्कि उसका 4 गुना उसने वापस किया है। I hope you are understanding the importance of this verse. It's मैं not one or two, it's fourfolds he gave it back. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं कि उसने 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना पैसा वापस किया। And because of that, he took that decision that day. और उसने उस दिन वो निर्णय लिया Salvation came to his home. और उद्धार उसके घर में आया। Not just to him, it's to his whole family, the house. सिर्फ उसके घर में नहीं, उसके पूरे परिवार में यीशु मसीह का उद्धार आया। People think, I am doing always right. I'm always sitting in the presence of the Lord. Then why is difficulties happening in my family? हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं तो हमेशा प्रभु की संगति में रहता हूँ, लेकिन ये इतनी तकलीफें क्यों है मेरे परिवार में? The main reason is that there will be someone else in your family who is taking the wrong decisions. तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रीजन हो सकता है कि कोई आपके परिवार में है जो गलत निर्णय ले रहा है। If those people start taking the right decision too, अगर वो लोग भी सही निर्णय लेना चालू करेंगे, Jesus will dwell in that house. तो प्रभु यीशु मसीह उस घर में रहेगा। Maybe your family, someone will be an alcoholic. अगर कोई आपके परिवार में शराबी हो सकता है, Someone would have been drug addicts. कोई नशा करने वाला हो सकता है, But then being in the family and still being, still because you love Jesus. अगर आप प्रभु से प्यार करके उस परिवार में हैं, If you want the complete blessing in your house to come, that means your whole house should take the decision, not just you. अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सारी आशीष आए तो सिर्फ आप नहीं, पूरे परिवार को एक निर्णय लेना पड़ेगा। Here also Zacchaeus took the decision, his whole family took the decision too. अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जक्कई ने डिसीजन लिया तो उसके साथ पूरे परिवार ने एक निर्णय लिया है। And when you come to the 9th verse, it says he also is a son of Abraham.
और आप 9वीं आयत में पढ़ेंगे तो वो भी एक अब्राहम का पुत्र है। If you read the 9th verse, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। he got an inheritance. उसको एक उत्तराधिकारी मिला। He is no more a normal person. He is son of God. वो अब एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक परमेश्वर का पुत्र है। We all, when you take a decision, we are also getting this inheritance. अगर हम एक निर्णय लेंगे तो हमें भी एक उत्तराधित्व मिलेगा। We are also the sons of God. हमें भी वो डेसिग्नेशन मिलेगा, परमेश्वर का बेटा होने का एक डेसिग्नेशन हमको भी मिलेगा। We are also heirs to his sufferings. हम लोग भी उसके सफरिंग्स के एक उत्तराधिकारी होंगे। Don't worry because you took this decision that troubles are happening in your life. ये मत सोचिए कि आपने ऐसा एक डिसीजन लिया है जो आपके परिवार, जो आपके जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है। I think so. It is in Romans 8, if you see, अगर आप रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय from verse 12, उसके 12वें आयत से the 17th verse, if you read, अगर उसके 12वें से 17 तक आप पढ़ेंगे, you can see that Spirit, the Holy Spirit gives you an inheritance. तो आप वहां देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपको एक उत्तराधित्व देता है। That is Son of God, and because of this, we can call our Father Abba Father. तो इस उत्तराधित्व के वजह से हम लोग अपने परमेश्वर पिता को पिता या फिर पापा बुला सकते हैं। If you come to the 16th verse, you can see that we are children of God. अगर उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ेंगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। When you come to the 17th verse, you can see that we are heirs of God, joined heirs with Christ, and indeed we suffer with him, and that we may also be glorified together with him. उसकी 17वीं आयत में हम पढ़ेंगे, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। Because of your decision, maybe troubles are going to come in your life. आपके एक निर्णय की वजह से मुश्किलें आएंगी आपके जीवन में। Even Jesus Christ also went through many sufferings in his life. हमारे प्रभु यीशु मसीह भी बहुत मुश्किलों से अपनी जिंदगी से गुजरे हैं। And we also become part of these sufferings. और हम भी इस सारी मुश्किलों का हिस्सा है। And don't be disheartened, because be happy because you are also a part of this suffering. आप दुखी नहीं हुए, क्योंकि अगर आपके जीवन में मुश्किल है तो आप अगर यीशु मसीह के सहभागी हैं आप लोग भी। Because of this, you can see we are also, our names are also going to be glorified. और इस मुश्किलों की वजह से हमारे नाम की भी प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा हो सकती है। So we saw first about Ahan. हमने सबसे पहले आकान के बारे में देखा। Because of his decisions, his family suffered. उसके एक निर्णय की वजह से उसके पूरे परिवार में मुश्किलें आई। Here we see in Zacchaeus' case, because of his decision, his family got saved. हम यहाँ पर दूसरा हम जक्कई को देखते हैं, जिसके एक निर्णय की वजह से उसके पूरे परिवार में उद्धार आया। Now we will go to the next person. अब हम एक तीसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे। That is, we'll go to Acts chapter 16. हम लोग प्रेरितों के काम 16 में जाएंगे। Here we can see about Paul and Silas. हम लोग यहाँ पर पौलुस और सीलास के बारे में देखते हैं। They when they came first to Asia, जब वो लोग पहली बार एशिया में आए, they went to Philippines. वो लोग दोनों फिलिपियो में गए। There you can see that because it's in, I think so, chapter 16 verse 16 onwards, you can see there was a woman who was evil possessed. वहाँ पर इसकी 16 का 16वीं आयत में देखेंगे कि एक औरत है जिसमें दुष्ट आत्मा है। And she was making a big fortune for her masters. वो वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही थी अपने स्वामियों के लिए। And that is in chapter 16 verse 16, you can read it. Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी।
And when she saw Paul and Silas passing by, जब उस दासी ने पौलुस और सीलास को गुजरते हुए देखा, she told seeing them that they have come here to proclaim the salvation of God. तो उसने ये चिल्लाकर कहा कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग दिखाना चाहते हैं। And this girl kept on following Paul and Silas. और ये औरत पौलुस और सीलास को उनका पीछा करने लगी। And Paul got annoyed and rebuked her in the name of Jesus. और ये देखकर पौलुस को गुस्सा आया और पौलुस ने उसको डांटा यीशु मसीह के नाम पे। And because of this, the demon that was within her left her. ये पौलुस के डांटने में जो उसके अंदर दुष्टात्मा थी वो निकल गई है। I hope you all are understanding till now which I am talking to you. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। So we spoke about Ahan, we spoke about Zacchaeus. Now we are talking about Paul and Silas. हम लोगों ने पहले आकान के बारे में बात किया, फिर जक्कई के बारे में, और अब हम लोग पौलुस और सीलास की बात कर रहे So हैं। because he removed the demon was left her body, the masters got furiated. जब जैसे पौलुस की आज्ञा की वजह से वो दुष्टात्मा उस औरत की शरीर से निकल गई तो उसके स्वामियों को बहुत गुस्सा आया पौलुस पे। And they went and complained to the authorities saying that these people have done such a thing. तो उन लोगों ने जाके प्रधानों के पास जाके पौलुस की शिकायत कर दी कि ये दोनों ने हम लोगों के साथ ऐसा किया है। And now they both were put in jail. ये इस वजह से दोनों को जेल में डाल दिया। From here the story the main part of the story starts. अब हम लोगों का मेन जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो चालू हो रही है। At midnight when the day they were arrested, जिस दिन की रात को वो अरेस्ट हुए थे, जिस दिन वो अरेस्ट हुए थे उस दिन की रात को Paul and Silas was worshipping the Lord in the cells. पौल और सीलास प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे उस जेल में। And every prisoners were listening to them. वहाँ की जेल के सारे कैदी इन दोनों की आराधना को सुन रहे थे। This we can see from the verse 25 down. ये हम 25वीं आयत से नीचे में ऐसा पढ़ते हैं। Suddenly when they were worshipping the Lord, there an earthquake happened. एकदम से जब वो लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे वहां पर एक भूकंप आया। In the Bible it's written the foundations of that prison was shaken. बाइबल ऐसा कहती है कि वो जेल की नींव हिल गई थी। And because of that the doors of all the prisons were open. इसकी वजह से सारे जेल के दरवाजे खुल गए थे। In such a case, imagine the situation of the jail keeper. तो ऐसी एक से एक टाइम पे जब सारे जेल के दरवाजे खुल गए हैं तो वहाँ के उस जेलर का या दरोगा का क्या एक सिचुएशन होगा, क्या एक स्थिति होगी, सोच के देखिए। He ran to these jails and with a light. वो दरोगा उस जेल के अंदर अपने उस लाइट के साथ भागा। And he thought everyone escaped. और उस दरोगा ने सोचा कि सब लोग भाग गए हैं। And he was about to kill himself. और वो अपने आप को मारने वाला था, वो अपनी आत्महत्या करने वाला था। That is written in verse 27. वो ऐसे 27 में लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। But no, Paul didn't escape. लेकिन पौलुस भागा नहीं था। And none of them escaped. और उसमें से कोई भी नहीं भागा था। And when he was about to kill him, Paul called him. और जैसे ही वो अपने आप को मारने वाला था, पौलुस ने उससे पुकारा। He said, do yourself no harm, for we all are here. और उसने बोला, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। Seeing this, the prisoner's life changed by hearing. ये देखकर दरोगा की जिंदगी बदल गई। In verse 30 he says, sirs, what must I do to be saved? 30वीं आयत में हम देखते हैं कि दरोगा ने ऐसे पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? And Paul said, accept Lord Savior Jesus Christ as a savior. और पौलुस ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। That's the point. It's not just you, but your household also. यहाँ पर जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि सिर्फ तुम नहीं, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। And from that day onwards, this jail keeper's life changed. और उस दिन से उस दरोगा की जिंदगी बदल गई। They got baptized. उन्होंने बपतिस्मा लिया। And their whole family got saved. और उसका पूरा परिवार उद्धार पाया। Imagine
First we saw the case of Ahan, family got destroyed. When you come to Zacchaeus, family got saved. When you come to Silas and Paul and Silas, the jail keeper's family got saved Yes. because of the decision they took. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक निर्णय की वजह से आकान का पूरा परिवार नाश हो गया, जक्कई का पूरा परिवार उद्धार में आया, और पौलुस और सिलास के द्वारा ये दरोगा का भी पूरा परिवार उद्धार में आया, एक एक निर्णय की वजह से। We have to also look into our lives at certain point of time. हम लोगों को अपने जीवन में एक कुछ समय अपने जीवन की ओर में देखना पड़ेगा। At times we have to also look back and think, are we taking the right decisions in our life? हम लोगों को भी अपने जीवन में सोचना पड़ेगा कि क्या हम सही निर्णय ले रहे हैं। At times we feel that no, this is not right. अब कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, At that very moment, take the next decision. और उसी समय में एक निर्णय लीजिए। Now we'll come to the case of Abraham. अब हम आएंगे हमारे पिता इब्राहिम के केस में। Here we can see about his nephew Lot. उसके नेफ्यू यानी उसके भांजे के लौत के जीवन में Lot was not, if you ask me, not that spiritual. But then he feared God, but then he was not that spiritual. अगर हम देखें तो वो इतना आत्मिक नहीं था, लेकिन उसको प्रभु का भय था। Here Abraham used to pray for his nephew. यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम अपने भांजे लूत के लिए प्रार्थना करता था। In Genesis chapter 18, हम लोग उत्पत्ति की किताब 18 में देखेंगे, from the verse 16, you can see God came to Abraham उसकी 16वीं आयत से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर अब्राहम के पास आया and told that I am planning to destroy Sodom and Gomorrah. और ऐसा बोला कि मैं सोदोम और गोमोरा का नाश करने जा रहा हूँ। As we spoke before, how before going for a war, people used to send spies. God sent 2 angels to Sodom and Gomorrah. जैसा हमने बात किया कि लड़ाई से पहले जासूस को भेजते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने 2 स्वर्गदूतों को सोदोम और गोमोरा में भेजा। And they were sent to check if should we destroy Sodom or Gomorrah. वो लोग वहां पर ये देखने के लिए गए थे कि हम लोग वो उस शहर का सोदोम और गोमोरा का नाश करें कि नहीं करें। But there, Abraham's nephew was staying. वहां पर ये अब्राहम का भांजा लूत रहते थे। I believe that Abraham was worried about his nephew. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि अब्राहम को अपने भांजे लूत के बारे में चिंता है। So from this verse 16 onwards till the last of this chapter, तो उसके 16वें आयत से लेके इस अध्याय के आखिरी तक we can see how Abraham is testing God. यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के साथ कैसे टेस्ट यानी कैसे उनका एक एग्जाम जैसे ले रहा है। I'm talking from Genesis chapter 18 from 16 onwards. मैं उत्पत्ति 18 की 16 से बात कर रहा हूँ। So first Abraham asked, if there are 50 people in Sodom and Gomorrah, तो अब्राहम परमेश्वर से बोल रहा है कि अगर 50 धर्मी लोग हैं क्या सोदम और गमोरा में, if there are 50 righteous people in Gomorrah, will you destroy the complete Gomorrah including these 50 people? यहाँ पर एक नेगोशिएशन चल रहा है कि अगर 50 धर्मी लोग हैं परमेश्वर, तो फिर भी क्या आप सोदोम और गोमोरा को नाश करेंगे? It's not Sodom and Gomorrah, the 50 people. Will he destroy the 50 people also in this? तो आप क्या वो 50 लोगों को भी नाश करेंगे क्या? God said, if there is 50 people, I'll think about it. तो प्रभु परमेश्वर उसको बोलता है कि अगर वहाँ 50 धर्मी लोग हैं तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। Again Abraham asked, Father, don't get angry with me. I'm going to ask you one more question. तो अब्राहम बोलता है कि परमेश्वर मुझसे नाराज मत होना, मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ। Now it is 45 people. तो अभी वो 50 से 45 में आ गया। If 45 people are there who are righteous, will you destroy these 45 people? तो अगर 45 धर्मी है तो आप क्या वो 45 धर्मियों को नाश करेंगे? God again said, if there are 45 people, I will save them. तो अब तो परमेश्वर ने कहा कि अगर ठीक है वहाँ पर 45 लोग हैं तो मैं बचा लूंगा। Again Abraham started. फिर अब्राहम ने पूछा, Again he asked, फिर if से there पूछा, is 40 people, what will you do? अगर 40 लोग होंगे तो क्या करेंगे? Again God said, same reply. वो ही बोले कि ठीक है हम नहीं बचा लेंगे।
Again he started his negotiations. He came down to 30 now. अब वो फिर से वार्तालाप के बीच में 40 से 30 पे आ गए। There also God said, if there are 30 people, I'll save them. और अब तो प्रभु परमेश्वर ने कहा कि हाँ ठीक है 30 लोग होंगे तो मैं बचा लूंगा। Like that, negotiations kept on going, and Yes. it came down to 5 people. ऐसे वार्तालाप चलता रहा और अब आ गए हैं हम लोग 5 में, Because Abraham wanted to save Lot. क्योंकि अब्राहम लूत को बचाना चाहता था, He was praying for Lot. क्योंकि वो लूत के लिए प्रार्थना कर रहा था। But then God said, if there are 5 people, He will still save them. और परमेश्वर ने कहा कि अगर 5 लोग भी होंगे तो भी मैं उस जगह को बचा लूंगा। Now the starting of the 19th chapter starts. In Genesis, chapter 19 starts. अब हम लोग 19वें अध्याय में आ गए हैं, उत्पत्ति के 19वें अध्याय। Here what happens, when the angels went to Sodom and Gomorrah, यहाँ पर जहाँ पर स्वर्गदूत जब सोदोम और गोमोरा में गए, the people, the angels stayed in Lot's place. वहाँ पर ये स्वर्गदूत लूत के घर में रहे। But the people over there created an issue. लेकिन वहाँ के लोगों ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया या इशू बना दिया वहाँ पर। And if you see that 19th chapter completely, it says how the angels got offended. वहाँ पर अगर हम ये 19वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो दोनों स्वर्गदूत को कैसा बुरा लगा है। They decided to destroy Sodom and Gomorrah. उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, सोदोम और गमोरा का तो नाश करना ही है। And they said to Lot, in the morning, take your family and leave this place. और उन्होंने लूत से कहा सुबह सुबह अपने परिवार को यहाँ से लेना है और यहाँ सोदोम और गमोरा से बाहर निकलना है। When he went and told to his son-in-laws, जब लूत ने अपने दामाद को जाके ये बोला, they made fun of him. उन्होंने लूत का मजाक उड़ाया। But then when the time came when God was about to destroy Sodom, लेकिन जब समय आया और सोदोम और गमोरा का नाश होने वाला था, our hero Lot didn't want to leave. हमारे हीरो जो लूत है वो वहां से नहीं छोड़ना चाहते थे। He is saying that it's fine, I am ready to stay here. लूत कहते हैं कि नहीं ठीक है मैं यहीं रुक जाऊंगा। But the angels of God लेकिन स्वर्गदूतों ने took hold of Lot, लूत को पकड़ा, took hold of his daughters उसकी बेटियों को पकड़ा and his wife, उनकी बीवी को पकड़ा and pushed them out from that place. और सोदोम और गमोरा से धक्का दिया बाहर निकालने के। It's like a pig in a dirty, muddy place. ऐसा एक जैसे सुअर एकदम कीचड़ में रहता है, Lot wanted to stay in that mud. वो लूत उस कीचड़ में रहना चाहता था। But then God said, because of the prayers of Abraham, लेकिन अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा God felt bad and wanted to take them out. परमेश्वर को बुरा लगा और परमेश्वर उस लूत के परिवार को वहां से बाहर निकालना चाहता। These stories I am saying in a simple way, but then when you read the Bible, you will understand the complete thing. मैं एक बहुत ही आसान तरीके में बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब इस अध्याय को या इस वचनों को पढ़ेंगे तब आपको उसकी गंभीरता का पता चलेगा। Then finally these people, angels told them to go to the mountain. तब फिर स्वर्गदूतों ने इस जो लोग को पकड़ा था बाहर निकालने के लिए उनको बोला कि तुम उस पहाड़ की तरफ जाओ। They said, we don't want to go there. हम वो लोग फिर बोले नहीं, हमको उस पहाड़ पे नहीं जाना है, We'll go to the small city next to it. हम लोग ये छोटा सा जो एक शहर है बाजू में वहां पर चले जाएंगे। And still the angels let that happen. फिर भी स्वर्गदूतों ने ठीक है तुमको वहां जाना है वहां चले जाओ। And he told them not to look back. लेकिन स्वर्गदूतों ने उनको बोला कि जा तो रहे हो लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है। And they escaped. They escaped. और वो लोग बाहर निकले। And when the morning came, Lord started destroying Sodom and Gomorrah. और जब सुबह हुई तो परमेश्वर ने सोदोम और गमोरा का नाश करना चालू किया। But it didn't start till Lot and his family left to that safe place. लेकिन परमेश्वर ने वो नाश तब तक चालू नहीं किया जब तक लूत का परिवार एक सुरक्षित जगह में ना पहुंचा हो। All because of Abraham. ये सब किसकी वजह से? सिर्फ अब्राहम की वजह से। Now we can see that while they went escaping, Lot's wife unfortunately looked back. अब हम देखते हैं कि जब वो लोग बाहर निकल रहे थे या भाग रहे थे उस जगह में, लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा। What happened? और क्या हुआ? She became a pillar of salt.
और वो एक नमक का पुतला बन गई। Lot and his daughters escaped, लूत और उसकी बेटियां वहां से बाहर निकल गई, but he couldn't save his wife. लेकिन वो अपनी बीवी को नहीं बचा सका। A decision that Lot had to take, which he missed. वो एक जो निर्णय जो लूत ले सकता था, लेकिन उसने उसको खो दिया। Lot's wife looked back and she lost her life. लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और उसने अपने जीवन से हाथ धो दिया। And Lot's life was not that great also. When it came later in his life, he had to sleep with his own daughters. और आगे हम जब देखेंगे तो लूत की जिंदगी में बहुत कुछ खास नहीं था, उसको अपने बेटी के साथ सोना पड़ा। Imagine a father sleeping with her daughters. सोच के देखिए, एक पिता अपने बेटी के साथ सोना। That was the biggest insult that could ever happen. ये एक सबसे बड़ा एक दुख का बात है जो हो सकता था, Because of the decision. वो एक निर्णय की वजह से। Now when we come to, we love about David, हम लोग दाऊद को बहुत पसंद करते हैं, but even David also did lot of mistakes. लेकिन दाऊद ने भी बहुत गलतियां की है। Now we'll go to First Chronicles. अब हम आएंगे पहले इतिहास की तरफ। You can see in chapter 21. पहले इतिहास 21वां अध्याय। From here, this whole chapter, it's about how Satan tempted David. ये जो पूरा अध्याय है ये इस पे आधारित है कि कैसे शैतान ने दाऊद की परीक्षा ली And how God got angry with them. और कैसे परमेश्वर को दाऊद में गुस्सा आया। We can see in the case of Joshua also, the Israel army was a very strong army. हम यहोशू के उसमें देखते हैं कि जो इस्राएल की जो सेना थी वो बहुत ही एक स्ट्रांग सेना थी। And under David also it was not different. और दाऊद के अंडर में भी कोई अलग बात नहीं थी, उसकी सेना भी बहुत ही शक्तिशाली थी। In the previous chapters of chapter 20, अगर हम इसका 20वां अध्याय पढ़ेंगे, there are so many wars which Israel won. उसमें बहुत सारी लड़ाइयां हैं जो इस्राएल ने जीती है। Israel war against Syria, इस्राएल ने सीरिया के खिलाफ लड़ाई जीती, won war over Edom, इदोम के खिलाफ लड़ाई जीती, against Ammonites, और अमेनाइट्स जो लोग हैं उसके खिलाफ में, अमोरियों के खिलाफ में उस लड़ाइयां जीती, against Syrians, सीरियंस के खिलाफ, and even against Palestine. फलिश्तियों के खिलाफ भी लड़ाई जीती। The next war David wanted to go against was, दाऊद जो अगली लड़ाई में जाना चाहता था that was against Judah. वो था जूडा के खिलाफ। Now what happens over here is, यहाँ पर क्या होता है, the army of Israel was so huge. जो इस्राएलियों की जो सेना थी वो बहुत ही बड़ी थी। They could have easily destroyed any country in the world. वो लोग किसी भी देश को नाश कर सकते थे। And you can see in the first verse of chapter 21, अगर आप उसका पहला आयत को पढ़ेंगे, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। here Satan says to David, you number the number of army people in Israel. शैतान ने दाऊद को उकसाया कि तुम इस्राएलियों की गिनती लो। And David, he was so, because of he won these many wars, he was so self-confident. तो ये इतनी लड़ाइयां जीतने के वजह से उसको अपने आप पे इतना गुरूर था That David decided to count the number of people in his army. तो दाऊद ने ये निर्णय लिया कि मैं अब अपने आर्मी के लोगों को गिनूंगा। And he says to Moab, उसने मोआब से Joab. उसने योआब से ये कहा, For those who don't know Joab is David's nephew. अगर आप जो योआब को नहीं जानते तो योआब दाऊद का भांजा है। And he was the commander of his army. और वो उस बड़ी सेना का सेनापति था। Joab told David, if you do such thing, God is going to get angry with you. योआब ने दाऊद से कहा, देखो आप अगर ऐसा करने जा रहे हो तो परमेश्वर आपसे नाराज होगा। But being the king of this country, I will say what you do. लेकिन योआब ने ऐसे बोला कि योआब मजबूर था क्योंकि दाऊद राजा था तो उसको दाऊद का बात मानना था। And they decided to count the army.
और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग पूरी सेना को गिनेंगे, from Beersheba to Dan. तो बेतशेबा से गाद तक, And they counted the number of members in the army. और उन्होंने उस सेना का पूरा नंबर गिनती की. And when you come to the verse 5, अगर आप इसके 5वें आयत में पढ़ेंगे, we can see the number of Israelites were 1,100,000 men. तब योआम ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे. Imagine 1,100,000 men. It's not a small army. सोच के देखिए, 10 लाख लोगों से भी ज्यादा. Imagine such a big army during those times. उस समय में इतनी बड़ी एक सेना को आप सोच के देखिए. And when you see the Judah's army, अगर आप यूदा के आर्मी सेना को देखेंगे, they were just 400,000. वो लोग सिर्फ 4 लाख लोग थे. But then there is another twist in the story also. लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है. The now the army, the number of people in the army counted was from Beersheba to Dan. यहाँ पर जो गिनती हुई थी वो बेतशेबा से दान तक की गिनती थी. In 6th chapter you can see that Levi and Benjamin was not counted. इस गिनती में लेवियों का और बिन्यामीन की गिनती नहीं थी. And imagine still that army was that huge. फिर भी उनकी बिना गिनती के भी ये 10 लाख से भी ज्यादा लोग थे. And God got furious. और ये इस गिनती की वजह से परमेश्वर को गुस्सा आया. David forgot about the part where he won the wars because of our Father in heaven. दाऊद ये बात भूल गया था कि उसने इतनी लड़ाइयां तो जीती है, लेकिन ये उसके बल में नहीं, परमेश्वर की दया से है. It was not the armies that were important. तो ये कोई सेना नहीं थी जो लड़ाइयां जीतती थी, It was the God who came down for them. और ये वो परमेश्वर था जो उनकी लड़ाइयों में नीचे उतर कर आया और उन्हें जिताया. And this infuriated God very badly. और ये गिनती, ये जो उसका निर्णय था, ये प्रभु परमेश्वर को इस बात से बहुत गुस्सा आया. And what happened? This is the part. This is very important because if you make God angry in your life, और ये बात बहुत ही जरूरी है कि अगर आपकी वजह से परमेश्वर को गुस्सा आया, there is no turning back, my friends. तो इससे कुछ भी हम लोग इस चीज से मुड़ नहीं सकेंगे फिर से. Because when the wrath comes, क्योंकि जब वो गुस्सा नीचे आएगा, that's it. That's the end of your story. और वो आपकी कहानी का अंत होगा. And here also we can see that in the 12th verse, और इसके 12वें आयत में हम पढ़ेंगे, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश के चारों ओर विनाश करता रहे. here you can see that God gave David 3 options. यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने दाऊद को 3 ऑप्शंस दिया, And each options were a tough option. और तीनों के तीनों बहुत ही कठिन थे. One was famine for 3 years. पहला था अकाल 3 साल के लिए. Next one was that your enemies will destroy you. और दूसरा था कि 3 महीने तक आपके शत्रु आपको विनाश करेंगे. And the third one is that he is going to send a pestilence to Israel. और तीसरा था कि वो एक मरी भेजेगा. And David selected the third one. और दाऊद ने तीसरा ऑप्शन को चूज किया कि वो मरी का जो ऑप्शन था. And from verse 14 onwards you can see God sent pestilence on Israel. और हम लोग इसका जो 14th आयत से पढ़ेंगे कि उस इस्राएल में परमेश्वर ने मरी को भेजा. And 70,000 Israelites men lost their life. और उस मरी से 70,000 आदमी मर गए. And David felt so bad. और इस बात से दाऊद को बहुत दुख हुआ. And when God sent this pestilence, और जब परमेश्वर ने ये मरी को भेजा था, he sent an angel to Jerusalem also. तो उस समय में एक स्वर्गदूत को यरूशलेम में भी भेजा था. And that angel started destroying Jerusalem also. और वो स्वर्गदूत ने यरूशलेम को नष्ट करना चालू किया. And God saw this और परमेश्वर ने ये देखा, and he felt so bad. और परमेश्वर को ये बहुत बुरा लगा. And he told the angels to take back your hand.
और परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को बोला कि अपना हाथ वहां से हटा ले। And David, in verse 16, you can see, और इसकी 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ से खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनियों टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। imagine his one decision सोच के देखिए, दाऊद का एक निर्णय cost the life of 70,000 people of his own nation. 70,000 लोगों का, 70,000 आदमियों के, उसी के देश के 70,000 आदमियों का जान ले लिया। Being a king, that was the biggest, how to say, a bad feeling. Of course, of a king, when you see that his people are dying, that's really sad for him to see. एक राजा होने की नजर से अपने लोगों को, वो भी उसकी एक गलती की वजह से मरना देखना जीवन का कितना बड़ा दुख हो सकता है। And David brought that land from that honor. और दाऊद ने उस जगह को खरीदा। And that was Ornan. तब यहोवा ने दूत ने गाद को दाऊद से ये कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी और नान के खलियान को यहोवा की एक वेदी बनाए। There David made a altar to God. और वहां पर दाऊद ने एक वेदी को बनाया। And that also God didn't say to him directly. और वो भी परमेश्वर ने उससे डायरेक्टली नहीं बोला था। God said to, if you see in verse, he said to Dan, I guess. उन्होंने गाद को बोला ऐसा करने के लिए। Yeah. Yes. And he is the one who sent this message to David. और गाद ने ये मैसेज दाऊद को दिया था वहां पर एक वेदी बनाने का। So imagine, now we are seeing so many people how they took their decisions and started affected. We saw till how families get affected. Now we saw how a nation got affected. हम लोग इतने देर से एक निर्णय की वजह से एक परिवार में क्या या आपत्ति या अच्छा आता है, और हमने ये देखा कि एक निर्णय की वजह से एक देश में कैसे एक आपत्ति आ सकती I है। hope you all are understanding. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। I'm trying to make it so simple so that you understand the importance of a decision. मैं इसको मैं आसान तरीके से बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये समझा सकूं कि एक निर्णय का कितना बड़ा उसका एक कितना बड़ा एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है। Now we come to the biggest decision mankind ever made. और हम अब आते हैं सबसे बड़े निर्णय के लिए जो मनुष्य ने लिया है। That is in Genesis chapter 3. और वो है उत्पत्ति 3 में। Here we can see how mankind had to suffer because of a decision Eve took. हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरी मनुष्य जाति को कैसे कठिनाइयों का सामना पड़ा हव्वा की एक निर्णय की वजह से। Imagine the whole mankind, the race got affected because of one decision Eve took. सोच के देखिए कि पूरी मनुष्य जाति को सफर करना पड़ा एक निर्णय की वजह से जो हव्वा ने लिया था। When you see in verse 6 and 7, अगर उसके 6 और 7 अगर हम पढ़ेंगे, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। till this moment in their life, they didn't know what is good and bad. इस क्षण तक उनको ये पता नहीं था कि क्या सही है या क्या गलत है। They never knew what evil was. और उनको ये नहीं पता था कि पाप क्या है। That's why even though they were naked, they never felt it was bad. तो जब वो नंगे भी थे तो उन लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये गंदा है या गलत है। But from that moment, their mind process changed. लेकिन उस क्षण से उनका जो सोच थी वो बदल गई। They felt very down because they were naked. उन लोगों को बहुत गंदा लगा कि अरे हम तो नंगे हैं। And that's why they took the leaves of the fig tree and covered themselves. इसलिए उन लोगों ने अंजीर का पेड़ को लिया और अपने लिए एक लंगोट बनाया। And God came down that day to the Garden of Eden. और परमेश्वर उस दिन वो एदन की वाड़ी में आया। And God calling for Adam and Eve. और परमेश्वर ने वहां जाके आदम और हव्वा को बुलाया। They didn't answer that day. लेकिन उस समय वो परमेश्वर को उन्होंने जवाब नहीं दिया। And God found them and saw that they ate from the tree. और परमेश्वर ने उनको ढूंढा और परमेश्वर को ये पता चला कि उन्होंने उस पेड़ से जिससे मना किया था उसका फल खा लिया है।
And God got so furious. और उस टाइम परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया. That furiation, that day, because of that, because he became fury, we can see how he cursed serpent, how he cursed woman, and how he cursed man. और उस गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उस सांप को, उस आदमी को और उस औरत को शाप दिया. Here, the serpent, from verse 14 to verse, I think so, 19. इसके 14 से लेके इसकी 19वीं आयत तक उस सांप को, Not Sap, Sap is from 14 to 15, but then in that you can see that the serpent was made to crawl on his belly for the remaining years of his life. और उस शाप में हम देखते हैं कि सांप को ऐसा एक शाप मिला कि तुम अपने जीवन काल में सिर्फ रेंगोगे. And when it comes to the difficulty of woman, और औरत को ऐसा शाप मिला. that is, we can read it in verse 16. उस 16 में ऐसा है, फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा. तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा. Imagine a woman got this, the pain of labor came because of her decision she took that day. सोच के देखिए, वो गर्भ की पीड़ा ये हव्वा के एक निर्णय की वजह से जीवन पे आई. And men was not spared too. और आदमी को भी छोड़ा नहीं गया है. And you can see in the verse from 17 to 19. और हम 17 से 19 में पढ़ेंगे. और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है. तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी. और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी से मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है. तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. When you see, men had to work for each grain for his family. यहाँ पर आदमी को ऐसा शाप मिला कि उसको एक एक दाने के लिए काम करना पड़ेगा. They were living like royals in the Garden of Eden. वो लोग बहुत ही ठाठ के साथ उस एदन की वाड़ी में रह रहे थे. But because of a decision Eve took, लेकिन एक निर्णय जो हव्वा ने लिया, the whole human race was changed. पूरी मानव जाति बदल गई. I hope you are understanding the importance of that decision. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं एक निर्णय का क्या एक परिणाम हो सकता है. And from that moment onwards, the Garden of Eden was sealed. और उस क्षण से वो एदन की वाड़ी पे ताला लगा दिया. It's in the eastern gate that was actually sealed. और उसका जो पूर्वी जो ईस्टर्न भाग है वो उसमें ताला लगा दिया. From the verse 22 to 24 we can see that. उसके 22 से 24 तक के बीच में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया In है. that verse you can see, you humans came to know good and evil. और उसमें हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को पता चला कि अच्छा और बुरा क्या है. In that verse when you go down, अगर उसमें हम लोग नीचे जाएंगे, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था. इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया. the whole Garden of Eden was sealed. पूरा एदन की वाड़ी को सील कर दिया था या And बंद कर God दिया था. put angels to guide it. और उसका रखवाला करने के लिए ज्वालामयी तलवार और अपने स्वर्गदूतों को वहां रखाया. The biggest loss we got was we were immortals. हम लोग को जो सबसे बड़ा जो हम लोग का या लॉस हुआ है कि हम लोग सब इमोर्टल थे यानी अमर थे. But we became mortal because of that decision. लेकिन इस एक निर्णय की वजह से हम लोग मरने के लिए हो गए. Evil entered the earth. ये बुराई जो है वो इस दुनिया में आई. And because of that, the Garden of Eden was sealed. और इसकी वजह से वो एदन की वाड़ी पे ताला लगा दिया. And now this Garden of Eden can be opened and you can go through Garden of Eden
through Garden of Eden is by Jesus Christ only. और उस एदन की वाड़ी में सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जा सकते हैं। If you accept Jesus Christ as your personal Savior, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, if you decide to take part, become partakers of His suffering, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के मुश्किलों में साथ देने के लिए अगर निर्णय लेंगे, you can enter the Garden of Eden. आप एदन की वाड़ी में एंटर कर सकते हैं। I hope you all understood these stories which I told you. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया जो भी मैंने निर्णय के बारे में बताया है। First we spoke about Ahan, पहले हमने आकान के बारे में बात किया, then we spoke about Zacchaeus, फिर हमने जक्कई के जीवन के बारे में बात किया, then we spoke about Paul and Silas, हमने पौल और सीलास उस दरोगा के बारे में बात किया, then we spoke about David, उसके बाद हमने दाऊद के बारे में बात किया, then we spoke about Adam and Eve. और हमने आखिरी में आदम और हव्वा के बारे में I बात don't want to take any more time. मैं और समय नहीं लेना चाहता हूँ। Even one decision Jesus also took. और एक निर्णय जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया, Being sinners, He decided to stand for us. हम जैसे पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ। When God was so angry with the human race, जब परमेश्वर बहुत ही गुस्सा था हम मनुष्य जाति की तरफ, Jesus took the decision to come down to this earth. प्रभु यीशु मसीह ने एक निर्णय लिया, इस धरती पर आने का निर्णय। He took the decision to save us. प्रभु यीशु मसीह ने एक निर्णय लिया हमारा उद्धार करने का। As a sister told, He came and He was born in a cattle. जैसे बहन ने कहा कि वो इधर आके एक गौशाला में पैदा हुआ था। He could have been born, as she told. He is a prince of the world. वो पूरी दुनिया का राजा है, वो कहीं भी प्रभु यीशु मसीह कहीं भी पैदा हो सकते थे। He didn't decide that. He told that I'm going to be born over here. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि मैं एक गौशाला में पैदा He हूँ। selected, the Holy Spirit selected Mary. और पवित्र आत्मा ने मरियम को चुना। And from there, for 30 years, He tried to learn the world. और 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को जानने की कोशिश की। And the last final 3 years, He went into His ministry. और लास्ट के 3 साल में प्रभु यीशु मसीह काम अपने मिनिस्ट्री की तरफ गुजारा। As He selected the disciples, even He made sure that He spreads the gospel of love. उन्होंने जब अपने डिसाइपल्स को चुना, तब उन्होंने ये बोला कि मैं प्रेम का एक संदेश दूंगा। Till the time of Jesus' birth, we were living in the Mosaic law. हम लोग जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, हम एक मोसेस के लॉस में जी रहे थे। But then, since He died on the cross, that laws were not important anymore. और तब तक जब वो क्रूस पे उनका मृत्यु हुई, तब वो मोसेस का लॉस नहीं इम्पोर्टेंट नहीं था। The only law was love. तब उस टाइम पे जो चीज था वो था सिर्फ प्यार। Be good, do good to people. लोगों के लिए अच्छा करिए। It is not tough anymore. अब ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। Before we were not able to come into the presence of the Lord. पहले हम लोग परमेश्वर की संगति में नहीं आ पाते थे। But then, since the death of Jesus Christ, we are able to sit here today. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद हम लोग को ऐसा एक मौका मिला कि हम लोग उसकी संगति में बैठ He सके। could have easily said to his father that, "No, Papa, I don't want this." वो परमेश्वर से बोल सकते थे कि नहीं, हमको ये इतना बड़ा काम नहीं करना है। He could have told that you destroy the whole mankind. अब वो ऐसे बोल सकते थे कि नहीं, आप पूरे मनुष्य जाति का नाश कर दीजिए। But no, He decided to stand for us. नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये निर्णय लिया कि वो हमारे लिए खड़े And हो। when He finally died on the cross, और उन्होंने अपनी जान दी उस क्रूस पर। He had to suffer so much that not even a human body can bear. और उन्होंने इतना सहा कि जो एक मनुष्य का शरीर नहीं सह सकता है। Each beatings, each muscles, each bones that He shed for you. और हर एक खून या हर एक मार और हर एक जो ताड़ना है, उन्होंने हमारे लिए सही है। He wanted to save us. That's why. उनका सिर्फ एक ही निर्णय था कि उनको हमको बचाना है। But what are we doing now? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? Look around the world. हमारे आसपास देखिए, Again, evil is growing so much. हमारे आसपास बहुत ही बुरी बातें और शैतान बहुत ही बढ़ रहा है। Evil has conquered almost the whole world, I guess. ये शैतान ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कब्जा करने के लिए है। Daughters, sons are killing their parents. बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं। Mothers are killing their daughters or son.
माँ अपने बच्चों को मार रही है, Fathers are killing their kids. बाप अपने बच्चों को मार रहा है। Imagine the evil that has entered this earth again. सोच के देखिए कि कितना पाप या फिर कितनी बुराइयां इस दुनिया में आ चुकी है। Now imagine the situation what Jesus is feeling now. और अभी सोच के देखिए कि प्रभु यीशु मसीह को कैसा लग रहा होगा। He took this decision and he's gone back to make a place for us. प्रभु यीशु मसीह ने निर्णय लिया, हमें बचाया और फिर से आसमान में, फिर से स्वर्ग में चला गया हम लोगों के लिए एक जगह बनाने की। Imagine if you are suffering for someone else and if they don't value your suffering. और सोच के देखिए कि आप किसी के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं और उस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। That's what would be feeling about us now. प्रभु यीशु मसीह को अभी ऐसा फील हो रहा होगा। So take your decisions wisely. तो आप अपना सारे निर्णय बहुत ही सोच समझ के Because लीजिए, the time is less. क्योंकि समय बहुत ही नजदीक है। Maybe your decisions in the past were wrong. हो सकता है कि आपके पुराने निर्णय गलत हो, Maybe your family is not saved. और हो सकता है कि आपके परिवार में उद्धार नहीं आया हो। But if you take the decision right today, लेकिन अगर आज आप एक निर्णय लेंगे and if you stand strong in your decision, और अगर आप उस निर्णय में एकदम अटल रहेंगे, our place is being prepared हम लोगों के लिए जगह स्वर्ग में बन रही है and we can enter there soon. और हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। Our sufferings in this world is nothing. हम लोगों की जो परेशानी या ताड़ना इस दुनिया में कुछ नहीं है। We are here in a training ground actually. हम लोग अभी यहाँ पर एक ट्रेनिंग हो रहा है हम लोगों The का। time that we spend on earth is maybe maximum 70 years or 80 years. इस दुनिया में हम लोग 70 या 80 साल तक जिएंगे, But if you want to live forever, लेकिन अगर आपको जीवन भर या फिर आपको इटर्निटी चाहिए, stand strong on your decision. अपने निर्णय में बिल्कुल अटल रहिए। And don't worry about your wrong decisions. आपके गलत निर्णयों के लिए चिंता नहीं करिए। As I told you last time when I spoke that Judas and Judas and Peter also. जैसे मैंने पिछले बार भी यूदा और पतरस के बारे में बोला था, Judas never believed that there is forgiveness. जो जूडा ने कभी भी विश्वास नहीं किया कि माफी भी है, But then, because of that, he gave up his life. और इसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। But Peter, लेकिन पतरस he knew that God can forgive him. लेकिन पतरस को ये पता था कि उसको माफी मिल सकती Maybe his decisions were wrong, है, उसके निर्णय गलत होंगे, but he got saved. लेकिन उसको उद्धार मिला। My dear friends, मेरे दोस्तों, I would like to end by saying this. मैं ये बोल के खत्म करना चाहता हूँ, We are nothing in our life. हम लोग कुछ भी नहीं है अपने जीवन में। It's all because of the love and the grace of Lord Savior Jesus Christ. सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया के द्वारा है। And put your decisions on him. और अपने सारे निर्णय को उसके ऊपर रखिए।